विवेक और निकिता आपके साथ है एंड वी हैव वाइब्रेंट गेस्ट इन आवर स्टूडियोज नाउ. MSME ऑनर्स इन कन्वर्सेशन विद द ज्यूरी. दिस इज ब्रॉट यू बाय टैली सॉल्यूशंस. हमारे स्टूडियो में कोई आया है इंदौर से, कोई आया है दिल्ली से, कोई आया है मलेशिया से. CA जयप्रकाश हमारे लिए न्यूजीलैंड लाए हैं उनके टी शर्ट के द्वारा. गुड मॉर्निंग सर. वेरी गुड मॉर्निंग सर. एंड सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूँ ये न्यूजीलैंड का टी शर्ट लिमिटेड एडिशन. सर न्यूजीलैंड इज़ अ न्यू नाइस कंट्री. जाना चाहिए आपको. आप ट्रैवल करते रहते हैं. आई वांटेड टू गिव यू मोटिवेशन टू ट्रैवल टू न्यूजीलैंड, इसीलिए पहन के आया हूँ. मुझे लगा टीम को सपोर्ट कर रहे, कीवीज को सपोर्ट कर रहे. इज दैट सर हिंदुस्तानी हूँ, दिल से हिंदुस्तानी ही रहूँगा. Jayaprakash ji, you've been traveling, and even Reema, you've also been traveling. Reema is the founder of the Indian Women Dubai, and you've been, in UAE doing so many wonderful things, and you've been traveling as well. Can you tell us about your travels? We were away in Malaysia for a lovely family holiday, and then we लंकावी गए कि नहीं आप? लंकावी में ही लैंड किए सर. सीधा एकदम लंकावी 4 में. सीजन्स लंकावी सीधा लैंड किए हमने डायरेक्ट वहीं फ्लाइट. 99 आइलैंड से उससे ज्यादा है वहाँ पे. Lord, it's a beautiful Did you do the zip line in the forest? No, we didn't. It was a chill, but we did the mangroves and Mangroves, the boat tour. I'm sure you did the spa, right? Of course, Oh, that's what yes, I you went for. So yeah, I know all of us are back from छुट्टी. मैं भी कल गया था छुट्टी के लिए. निकिता तुम गई कहीं? मैं स्टेकेशन गई. ख्यालों में गई नहीं थी. नहीं, I had gone in Sofitel the retreat. बहुत मजा आया मुझे और मैं बर्थडे. वो 3 महीने पहले. मेरे काफी था यार. 3 महीने हो गए. All right, welcome to Tally's MSME Honors. Now in conversation with the jury, backstage pass to one of the most prestigious recognitions for small and medium businesses in the region. आज we are going to take you into the minds of people who decide who makes it to the winners list. August 24th को reveal होंगे 25 winners, 5 champions in each of the 5 categories: business maestro, wonder woman, new gen icon, tech transformer, and e-preneur icon. लेकिन before we get there, talking to 2 of the 5 out of the 5 में से 2 incredible jury members about what the judging process is really like and what makes a winner stand out and how fair this initiative truly is. पहले गेस्ट हमारे पावर हाउस कनेक्टर and community builder. She is the founder of the Dubai Women Entrepreneurs Group, bringing together over 15,000 women to network, collaborate and grow. She served as the specialized jury for the Wonder Woman category, looking for women entrepreneurs, rewriting the rules with leadership and impact. Welcome, Reema Mahajan. Thank Good you so morning. much. Good morning to everyone. Reema, we have so much of talks to delve upon. First of all, I'd like to know, when you were invited as a jury member to MSME Honors 2025, what were your first thoughts? And this is for you, Reema, as well as for you, Mr. Jayaprakash. I think beyond the excitement, it was a lot of responsibility. So I was very excited, and honestly, I've been working with MSME for the last couple of years. So this is not my first year. I think it's the 3rd or the 4th year I'm coming back. But every year it feels like a responsibility, because MSME Awards does a brilliant job of recognizing the true, real, small entrepreneurs out there. So very excited to be part of the team. On a fun side, कपिल शर्मा के अर्चना पूरन सिंह की तरह मतलब. CA जयप्रकाश हमारे साथ, हमारे second guest. He is a resounding force in the world of management consultancy. While becoming a CA is like scaling one of the highest peaks. Being a rank holder is like scaling another one right on top of it. He's also the chairman of Dubai's chapter of the Institute of Chartered Accountants of India, ICAI. He will be judging the e-preneur icon category, spotlighting pioneers who are shaping the business ecosystem. Welcome, CA जयप्रकाश अग्रवाल. थैंक यू विवेक भाई. थैंक्स अ लॉट. एंड यस, आपसे भी यही जानना चाहेंगे कि जूरी मेंबर फॉर MSME ऑनर्स 2025, फर्स्ट थॉट. सर फर्स्ट थॉट ऐसा लगता है युद्ध में जा रहे हैं. आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, काइंड ऑफ नॉमिनेशंस व्हिच आर कमिंग इन. हमें लग रहा है कि यंग जनरेशंस इम्पेशेंट हो गई है, बट आई एम टेलिंग यू इनोवेटिव हो गई है. एंड एवरी कैटेगरी, trust me, when we sit with those papers, it looks, being a judge is easy, but as Reema said, it's not easy. It's really a responsible job, जहाँ हमें लगता है कि हर बंदा दूसरे से बेटर होता है और बेटर है. किसको अवार्ड नहीं दें इज अ क्वेश्चन. मतलब वहाँ पे एक्चुअली जजेस के बीच में डिस्कशंस, डेलिब्रेशंस इतना ज़्यादा होने लगता है कि भाई why not this guy. सो ई-प्रेन्योर के बारे में अगर आप बता सके, ये कैटेगरी के बारे में. E-preneur is basically talking about entrepreneurs or the
पीपल हु आर हैविंग एनी आइडिया, उस आइडिया को उन्होंने कंसीव किया, कंसीव कर उसको एक जान दी, उसमें जान डाल के उस बिजनेस को स्टार्ट किया और कुछ अचीव करके दिखाया। अच्छा। तो हम उनको अवार्ड कर रहे हैं कि आपके पास आइडिया था लेकिन आप उस आइडिया के साथ बैठे नहीं, आपको अपने आइडिया में जान लगी और उस जान को उसमें जान फूकने के लिए अपनी जान लगा दी और कुछ ना कुछ अचीव करके दिखाया, रेवेन्यू जनरेट किया, प्रॉफिट जनरेट किया और कहीं ना कहीं अपने आप को स्टैब्लिश किया मार्केट में, विच इज नॉट ईजी if you don't have any. And it has to be different from the existing one, या फिर it has to be an innovative idea, is it, or is it के disruptor होना चाहिए, या it could be a normal one also? It can be normal, but disruptor होता है मार्केट के लिए, and disruptor can be global, can be local market in UAE as well. कहीं और था लेकिन UAE मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता था, आपने आके किया, yes it's a repeat model from any other jurisdiction, but Middle East is a different economy, UAE is a different economy. आपने यहाँ पे क्रैक किया, you are a disruptor, you are a e-preneur, you will be awarded for it. And for Reema, Dubai Women Entrepreneurs Group तो आप ने फाउंड किया ही है, but what is the category that you will be judging? Wonder Woman. So I was a specialist jury for Wonder Women. Women तो आपको पता है ये multi talented होते हैं, but I think in addition to the roles we all play at home, there are more and more women entrepreneurs coming forward, and it is one of the most difficult categories and one of the most interesting categories to judge. Right. I mean, what are those innovative ideas that you've come across, या फिर any businesses that last year जो आपने देखा and this time there is a lot of difference? Every year gets better and better nominations. Right? Every year women are coming forward. The number of nominations also has been increasing, and I think Tally does a brilliant job of encouraging more and more women entrepreneurs who are starting over and who are building businesses to come forward and nominate themselves. So Wonder Woman category में आने के लिए it has to be solely owned by a woman, और के husband के पैसे लगे तो no problem, is it? You have to be on the leadership board, you have to be one of the founding members, but it's okay to have a male partner. But the women are driving the business and they are playing an important role in the business. अच्छा, मतलब अगर कार्ड में खाली CEO होता है women का, is that also allowed? Yes, and it's actually being run by a no, I'm getting into the details so much. When we get into the nominations, when we get the entries, हमको सब समझ में आता है कि कितना काम किया है. It's not easy to get through that process because the process is so stepwise and detailed that nobody can get through कि husband का पैसा लेके हम Reema and Jaiprakash ji, I want to know from both of you, for those who don't know, what's the judging process like, and how do you know the nominations are going to be stronger enough to lead to becoming winners? Perfect. तो स्टार्ट जर्नी होती है, एक एप्लीकेशन आप अपने हिसाब से डालें, एक फॉर्म रहेगा, आप भर दीजिए. Okay. भरने के बाद टीम रीच आउट टू यू एंड ट्राई टू गेट मोर इन्फॉर्मेशन. जब विवेक ने बोला ना कि पैसे पति के लगे, सीईओ का कार्ड काम चल जाएगा, नहीं चलेगा. नहीं चलेगा, इतना डिटेल में जाता है. क्योंकि आपके पास क्वेश्चन के लिए कॉल्स आएंगे, आपने भर दिया, क्योंकि अगर एक्चुअली में आपने किया है काम तो आपको सब कुछ मालूम है. जब आपके कॉल बैक आएगा, टीम आपसे क्वेश्चंस पूछ रही है, वो 2 वे प्रोसेस हो रहा है. एक, हमको ये वेरिफिकेशन मिल रहा है कि सिर्फ भरा नहीं गया है, एक्चुअली काम हुआ है. Second, we are collecting those you can say feedback mechanism, or you can say the supporting documents to support what you have written there. क्योंकि आपने कुछ लिखा है, आपको ये इंश्योर करना है कि वो है, right? तो इसीलिए वो इन्फॉर्मेशन ली जाती है. Then all these information is collated और उसको एक प्रॉपर स्ट्रक्चर दिया जाता है इन अ टेम्पलेट फॉर्मेट, ताकि एज अ जज जब हम बैठे, एक आई इंफॉर्मेशन, एक स्क्रीन पे हम सब कुछ देख सके उस एंटरप्रेन्योर के बारे में, कंपेयर कर सके दूसरे के बारे में. तो कितने पैरामीटर्स है इसमें? पैरामीटर्स की बात करूं तो हर कैटेगरी के डिफरेंट पैरामीटर्स हैं. वंडर वुमन में जैसे वुमेन होना जरूरी है, बिजनेस में एक रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए या रेवेन्यू स्टैब्लिश हुआ होना चाहिए. इट शुड नॉट बी प्री रेवेन्यू. प्री रेवेन्यू इज बेसिकली आपने रेवेन्यू जनरेट नहीं किया, आप आइडिया लेके घूम रहे हैं मार्केट. ओके, रेवेन्यू जनरेट हुआ होना चाहिए. आपने कहीं अगर कुछ अवार्ड जीते हैं, दैट गिव्स यू अ लिटिल मोर एज, या आपको अवार्ड्स कहीं ना कहीं मिले हैं. आप अगर प्रॉफिट मेकिंग है, आपको और एज मिलती है, क्योंकि आप बर्न नहीं कर रहे कैश. रेवेन्यू के साथ आपने प्रॉफिट भी बना के दिखाया है. कितने नंबर में ग्रोथ आ रहा है ईयर ऑन ईयर, दैट ऑल्सो मैटर्स, दैट गिव्स यू फर्दर एज. तो हर कैटेगरी के लिए पैरामीटर्स डिफर करते हैं. पैरामीटर्स सारे हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं करेंगे, क्यों नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर हमारे लिए और टफ. ऑल्सो एम्प्लॉयज कितने खुश है उस कंपनी के, क्या वो भी सर्वे होता है? वो भी सर्वे होता है, और एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और ये इसलिए बताना चाहूंगा ताकि मैं चाहूंगा कि और आए नॉमिनेशन. होम ग्रोन बिजनेसेस को एक्स्ट्रा एज और मिलती है. अगर आपने यूएई में होम ग्रोन किया है, आपने यहीं स्टैब्लिश किया है, कहीं से ब्रांच मॉडल नहीं लेके आए हैं,
तब आपको और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एज दे सकते हैं। तो होम ग्रोन बिजनेस में एक्चुअली में देखा जाए फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है। सो होम ग्रोन में तो वन इज दैट जो वर्ल्ड वाइड वायरल हो गया इज दुबई चॉकलेट, रीमा। बिल्कुल। और हम आपको नहीं बताना चाहते कि उनके शेफ ने भी अप्लाई किया था इस साल। तो वो तो आगे देखने की। The most interesting entries we've got. I think, to be honest, we had very, very interesting these entries this year. Right from the chef who went viral. उनका भी entry है. अब हम बताएंगे नहीं कि वो winner है कि नहीं. We had entries from people like DJ Buddha. You know, a different icons, celebrities, people who in are Wonder doing... Woman category? Not in... See, Wonder Woman is only one of the 5 categories, right? So there are other categories of businesses out there. Different ideas जो आप बोल रहे हो as Yeah. freelancers also. Yes, it's. I think it's a great platform for freelancers to come forward. Whether you are a makeup artist, whether you are in the fashion industry, Right. whether you are building the skincare business, आप कुछ भी कर रहे हो, if you are creating impact, I think you need to come forward and nominate yourself. in So that. Reema, in the Wonder Woman category, what are the key things that you're looking for in a winning entry? Beyond just the idea, it is the impact. Right. Right. As a woman, ideas तो आपको market में हर जगह मिलते हैं. But do you have the courage to step out of your home and create that impact in the market? And Right. I think we look at the growth stories of the women. We have beautiful examples of women who've taken personal problems, created a business around that, and now are creating impact. So that's what Wonder Woman is for me. Wonderful. You know, ये जो innovative ideas है and the ones who are being shortlisted as well, जैसे आपने कहा, are there any more, जैसे आपने बोला homegrown businesses, any more industries that, जैसे मेकअप हो गया, जैसे म्यूजिक हो गया, इवेंट्स हो गया, that you've come across as nominees? As a nominee हम अगर come across के जैसे कुनाफा की बात कर रहे हैं, हाँ. कुनाफा it was really good. उसके बाद हमने judging मतलब the chocolate is good or the nominee? नहीं हमने दोनों अच्छे. Because बहुत लोगों ने टेस्ट नहीं किया अभी तक. इसीलिए हमने जजिंग पैरामीटर चेंज किया. हमने बोला जो फूड लेके आएगा हमें टेस्ट भी कराएगा. ये बढ़िया है. We'll continue the conversation. अगर आपके पास भी कोई सवाल, you can always send us a WhatsApp 0586861003. Daybreak आप सुन रहे हैं, विवेक और निकिता आपके साथ है and this is MSME Honors in conversation with the jury. August 24th को रिवील होने वाला है 25 winners, 5 champions in each of the 5 categories: Business Maestro, Wonder Woman, New Gen Icon, Tech Transformer and E-Preneur Icon. This is all brought to you by Tally Solutions. We've got Reema Mahajan, CA Jaiprakash Agarwal in our studios. Reema, आपसे मैं पूछना चाहूँगा that अगर आप participate करती इसमें, now this you are a jury this time, last time की तरह and उसके पहले भी, but if you had to participate, आपको लगता है you would have won, Reema? I think it's a very difficult competition to है ना? win. बहुत difficult है ना? Yeah. मैं jury ठीक हूँ. And CA Jaiprakash, your thoughts on that? अगर आपको participate करना होता? hands down नहीं जीतता. नहीं? hands down, क्योंकि जिस तरह के नॉमिनेशंस और एप्लीकेशंस जिस तरह के नॉमिनेशंस आ रहे हैं और जिस तरह के मैं बिजनेसमैन देख रहा हूँ जो नॉमिनेट कर रहे हैं, हैंड्स डाउन मैं अपने आप को बोलता हूँ कि दे आर वे अहेड एंड इट्स नॉट इजी. In fact, ये innovation is getting even more, क्या बोलते हैं, steam मिल रहा है because globally information इतना easily available है. Your thoughts on that, Reema? And ग्लोबल इंफॉर्मेशन है और उसके बाद अब मैं जो देख रहा हूँ रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ रही है. अच्छा, ठीक है. मैंने एक चीज़ जो देखी, एक एप्लीकेशन आई थी इस बार की है, आई डोंट रिकॉल द नेम ऑफ द बिजनेस. दे आर वर्किंग विद स्पेशली एबल चिल्ड्रंस Okay. और उनको सोसाइटी में स्टैंड कराने के लिए जो करना है ताकि दे कैन अर्न रेवेन्यू. दैट वाज एन एप्लीकेशन दैट मूव्ड अस. अगर यू डोंट, इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट्स, इट्स अबाउट मेकिंग देम स्टे. एंड आई थिंक, आई गेस, आई एम होपफुल. और आप सोचिए, एज ए जजेस हमको भी नहीं मालूम कि कौन जीतने वाला है. अगर आप सरप्राइज की बात करते हैं, जजेस के लिए भी सरप्राइज है कौन जीतेगा, क्योंकि वो 5 जजेस का भी एवरेज होगा जो हमको भी नहीं बताया गया कि कौन जीतेगा. लेकिन हर कैटेगरी के लिए एक जज है ना? उसको वेटेज है. देखिए 5 जज करेंगे हर कैटेगरी. वंडर वुमन में अगर मैं किसी को 10 रेट करूंगा, जब रीमा 10 रेट करेंगे वो वेटेज के साथ 20 कहलाएगा या 30 कहलाएगा. अच्छा, बट एवरेज सबका होगा. तो सिर्फ सरप्राइज आप सबके लिए नहीं है, जिन्होंने किया है उनके लिए नहीं है, सरप्राइज हमारे लिए भी है. हमें भी नहीं मालूम कि फाइनल 5 कौन जीतने वाले हैं. वो सिर्फ चैट जीपीटी को पता है. वो सिर्फ चैट जीपीटी की जगह वो सिर्फ प्रियेश और टीम. Now let's dive into the judging insights and fairness. I mean, this is for both of you, Reema and to Jaiprakash ji. Do you look more at facts or you like to look at measurable impact, or is there something subjective as a subjective element like the story or the struggle behind the nomination as well? ओके.
Go ahead. Both. I think both. Facts, Huh. yes, making revenue is important. Right. Yes, if you're making profit, जैसे जयप्रकाश जी ने कहा, it's even more important and more impressive. But always, a lot of the times we get impressed by the story of why the business has started. The Right. real impact, like Children of Determination, People of Determination का भी हमने example दिया. There is a woman who had skincare problems and started a business, right? Yeah. There is a Yeah. makeup artist who's trying to start fresh in Dubai after moving from a different country. These are the stories where the impact is even bigger than probably the numbers are smaller today. Remember, these are MSMEs. Right. These are solopreneurs. These are homepreneurs trying to get independent and financially independent. Yeah, yeah. So the whole idea here is to encourage them more. If the award builds confidence for them to come on stage and create a bigger story after the awards, that is what I feel Tally is going after. Because one thing for sure कि Talk 100.3 पे they do get a platform to come and talk about their business and ideas. तो ये बहुत अच्छा, इससे better award. आपको मिलने को मिलता है. But your thoughts on this, ये measurable impact के बारे में या फिर story struggle थोड़ा emotional नहीं हो गया? दोनों हो गया. अब मैं बोलूं तो अगर मैं एज ए इंसान देखूं, आदमी दिल और दिमाग दो सी चीज चलता है. ठीक है, 5 जजेस भी हैं, तो अगर आप देखेंगे तो आई से टैली या प्रियेश डज अ रियली गुड जॉब. वो दिल और दिमाग दोनों को लेके आते हैं साथ में. अगर चार्टेड अकाउंट रखा हुआ है तो इसलिए रखा हुआ है कि दिमाग लगाएगा, नंबर्स देखेगा, जो हम देखते हैं. चार्टेड अकाउंट होती है, हम दिमाग देखते हैं. जब रीमा आती है वो दिल लेके आती है, वो बोलती है जय लेट्स लुक एट द नंबर्स, यस बट ऑल्सो लुक एट द स्टोरी. राइट. आप दिल के भी बंदे हो, आपको दिल भी देखना है, स्टोरी देखो क्या सोच के स्टार्ट किया गया, क्या बिहाइंड उनके गया है. इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब हम जजिंग पैरामीटर बैठते हैं, हमारे लिए यही दिक्कत होती है, और दिल और दिमाग दोनों को बैलेंस करते हैं. स्टोरी इज इंपॉर्टेंट बट नंबर्स ऑल्सो नीड्स टू सपोर्ट इट. So if there's need to be a rational behind it, is it going to be 50-50 or is it going to be 70-30? वो वहाँ पे हमारे टेबल पे जो जीतता है लड़ाई में, उसके हिसाब से हम डिसाइड. Reveal नहीं करेंगे आप. वो तो अच्छा है, खाली जूरी मेंबर नहीं है, तो पता नहीं क्या होता है. बट ये जो मेजरेबल इम्पैक्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग. उसमें भी कुछ पैरामीटर्स है कि 1 मिलियन का बिजनेस होना चाहिए या फिर इज देयर अ अमाउंट एसोसिएटेड विद दैट? हर कैटेगरी के लिए एक अमाउंट है. इसीलिए अगर 5 कैटेगरी देखेंगे, देयर आर स्लैब्स बट वी डोंट डिस्क्लोज इट ऑन द पैरामीटर सेइंग इतना हो तो करिए. बट यस इट्स देयर. इवन ईयर्स आर काउंटेड. आप कितने साल से बिजनेस में, लाइक बिजनेस मेस्ट्रो, यू हैव टू बी इन एटलीस्ट 3 to 5 years इन बिजनेस मिनिमम, तब जाके आप क्वालिफाई करेंगे. तो एप्लीकेशन आने के बाद ऑल दीज क्वालिफिकेशंस एंड पैरामीटर्स और मेजरेबल्स प्लेस में जाते हैं टू डू फर्स्ट राउंड ऑफ फिल्ट्रेशंस. सो फॉर एग्जांपल आपका टर्नओवर अगर लेट्स से 3 मिलियन है, 1 मिलियन उससे ऊपर है, एंड देन आपको पता चल जाता है इनका कॉर्पोरेट टैक्स कितना है, फिर आप अपना इज दैट द मेन आइडिया? कितना भर रहे हैं ये, कितना तो VAT भी भरते हैं. How much are they paying? And this is where Tally comes into play ना सारे businesses के लिए. Do you have to be a Tally customer? Do you have to be a user? No. Tally software user to be? Oh. You can be a future one, right? We are building the empire. No, this is a welcome move ना फिर Tally की तरफ से तो यार, Yeah. कि anybody can enter this and win this. Yeah, that's how fair it is, right? It's open to everybody. So you don't need to be a Tally only member right now. You don't need to be using Tally products to participate in the competition. और ये opportunity बहुत कम लोगों को मिलती है, right? I mean, you're talking about judging. Both of you all have been judging for a long period of time. How do you keep that unbiased view while judging? Is there a special familiarity with the nominee already, or how do you find that unbiasedness within you? परफेक्ट, गुड क्वेश्चन. आपको बताता हूँ, लास्ट ईयर तक, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूँ, हमको कंपनीज के नाम भी नहीं बताए जाते थे. Okay. ठीक है, वी वर यूज्ड टू बी टोल्ड अबाउट द स्टोरी. Right. क्या हुआ है, क्या स्टोरी है, क्या नंबर्स है, एवरीथिंग, बट नॉट द नेम. Okay. तो हमें पता ही नहीं चलता था कौन कर रहा है, तो बायसनेस नहीं आ सकती. सेकेंड चीज जो अब लास्ट ईयर भी हमने किया था, जहाँ हमें लगा कि भाई ये स्टोरी सुनने के बाद, नंबर सुनने के बाद मुझे पता है कि ये कौन है, वी यूज्ड टू ऑप्ट आउट सेइंग कि इसमें टेक द एवरेज, वही एवरेज मेरा पकड़ लेना. Okay. क्योंकि आई विल नॉट रेट इट. तो ये अब एक चीज बोलूंगा यहाँ पे, एक चीज मैं टैली की तारीफ करूंगा. टैली कर रहा है अवार्ड्स, बट उन्होंने जब भी स्टार्ट किया था, और ये स्टार्ट करते वक्त भी इनका एक ही थॉट प्रोसेस था, वी वांट टू अवार्ड द अचीवर्स. और वो भी कौन से सेगमेंट में? MSME में. ये जो एंटरप्राइज हैं, उन्होंने तो बना लिया, उन्होंने कर लिया है. स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज को कहीं ना कहीं तो मोटिवेशन चाहिए. मैं उस सेगमेंट में काम करूंगा, और दे आर एक्चुअली वर्किंग ऑन इट. मैंने पहला अवार्ड देखा है जहाँ पे पैसे लेके कहीं अवार्ड नहीं दे रहे. ये हमको, अगर मैं बोलूँ कि यार मैं जज हूँ, इसको फेवर कर दे, उसमें भी प्रियेश मेरे को मना कर देते हैं कि नहीं, ये नहीं हो सकता. जय, प्रोसेस हमारा स्ट्रेट है. 5 जजेस बैठेंगे, आप कर दो, आपको भी नहीं मालूम कौन जीतने वाला है, हम ही बताएंगे. तो दैट फेयरनेस इज देयर, और MSME के लिए वो बहुत जरूरी है. Correct. Being fair is absolutely important, is. because
आजकल तो शाहरुख खान भी मतलब लेते हैं वैसे तो सुना है, बट दिस टेक्स मतलब दिल पे पत्थर रख के काम करने वाला ये काम दिल पे होता है। पत्थर रखकर नहीं, बट आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी आप देते हो ना तो आपको अच्छा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ बिकॉज मैं उसको जानती हूँ मैं अवार्ड नहीं करूंगी, पर मुझे पता है कि उनकी कैपेबिलिटी है तो यू विल बी गिविंग देम बेटर। Reema, there's a cost associated with this also, right? Yes. And this is where most of these award companies, या फिर they try to nullify it, but Tally is not doing that. Yeah, it's a fully sponsored event by Tally, which is what we are talking. Priyesh, So we nobody need to has take to it to the pay next stage money next to year. even be a nominee. Nobody has to pay money also. No, and you get a dinner fully sponsored by Tally. Nice. So how fair is this initiative? What checks are in place to make sure every nominee gets a fair shot at nomination to winning? इससे ज़्यादा फेयर शॉट क्या हो सकता है मेरे को बताइए, जहाँ पे आप एज अ इंडिविजुअल जज डिसाइड नहीं कर रहे, आपको नाम डिस्क्लोज नहीं हो रहे कंपनीज के, ठीक है, आपका एवरेज लिया जा रहा है जहाँ पे आपको भी नहीं बताया जा रहा है वो एवरेज से कौन जीतने वाला है, एंड देन व्हेन वी आर स्कोरिंग इट, ट्रस्ट मी, वी आर नॉट सिटिंग टू ईच अदर कि मैं रीमा के शीट में झाँक के बता सकता हूँ कि रीमा ने क्या स्कोर किया है. वी आर नॉट सिटिंग टुगेदर, वी आर सिटिंग इन डिफरेंट प्लेसेस, वी आर सीइंग इट एंड नेमिंग इट. इससे ज़्यादा फेयर क्या हो सकता है? No, it is a fantastic opportunity for all the MSMEs listening out there, and I'm sure that Tally Solution के website पे सारा information वहाँ पे होगा. अगर आपके पास भी कोई सवाल है, if you run a business, you want to be a part of this, आप हमें WhatsApp कर सकते हैं. We'll send you the details. 0586861003. Memorable moments, tips for future nominees. So without revealing names, can both of you share a nomination that really felt close to your heart, that left a mark on you? जैसे मैंने बोला, मेरे लिए वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट था जब मैंने देखा कि डिफरेंटली एबल्ड के लिए भी कोई काम कर रहा है जी. और उसके बाद करने वाले भी क्या होता है, जो मेरे को मूव किया, दे मूव द एप्लीकेशन फॉर नॉमिनेशन, दैट इज इम्पैक्टफुल फॉर मी. Okay. कोई करता है ना, वो नहीं आता है अवार्ड्स के लिए, But वो कर रहा होता क्या है वो स्किल बिल्डिंग है for वो people of स्किल बिल्डिंग है recognition? Okay. कि डिफरेंटली एबल्ड है ना, तो उनको कैसे सोसाइटी में स्टैंड कराया जाए, कैसे वो अपनी अर्निंग कर सकेंगे, और उस पे काम करना और ये बताना कि इतने लोगों की लाइफ मैंने ट्रांसफॉर्म की है, और उस अवार्ड के लिए नॉमिनेट करना मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई आप आके बता रहे हो. क्योंकि देखिए अवार्ड दो चीज़ करता है, आपको तो मोटिवेट करता ही है, सोसाइटी को भी मोटिवेट करता है कि ये एक सेगमेंट और काम करेगा. बट इमेजिन ये जयप्रकाश, ये एक स्मॉल मीडियम या फिर MSME कर रहा है. व्हाट आई डिड नोटिस इन इंडिया, जब मैं आ रहा था वहाँ पे ऑन द काउंटर, चेक इन काउंटर एयरलाइन के, ही वाज डिफरेंटली एबल्ड, और वहाँ पे जो कलीग थी वो बता रही थी सारे कस्टमर्स को कि प्लीज आप सॉफ्टली बात कीजिएगा इनसे. एंड बिग कंपनीज डू इट व्हिच इज ग्रेट, बट MSMEs डूइंग इट. यही बोल रहा हूँ, मेरे को उसने मूव किया था. आई फाउंड दैट एप्लीकेशन रियली गुड. रीमा, आपकी तरफ से कोई एप्लीकेशन जो आप? I think इस बार तो स्टार एप्लीकेशंस थे, right from DJ Buddha to the chef behind the viral Dubai chocolate. I'll mention last year one of the ladies who won, Rita, I know her personally, and she started a skincare brand, and she started the skincare brand because उनकी फैमिली में अपनी फैमिली को eczema था. So she went and studied from London and did research and has a very nice homegrown business which she's doing very well. So here's an example of women entrepreneurship that I keep talking about, right? This is a live example of Tally awarding her in such a fair way. Those are some iconics, clients and winners that you've got. But when you're moving in for MSMEs, when those listening out there right now who'd want to nominate themselves, what's your best tip for them to stand out for nominations? Perfect. जो अब मैं बताऊंगा जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, और अगर आप मूव्ड हैं एंड यू वांट टू मेक द एप्लीकेशंस, आई विल से when you are feeling, yes, fill your story, that is good, okay, be very clear with what is exactly the story is. लेकिन जब आप fill करें, measurable terms में fill करें. Please note your numbers are confidential, your numbers are not going out in public. मैंने देखा है MSME अपने numbers देने से घबराता है. numbers मतलब मोबाइल नंबर नहीं मांग रहा हूँ, मैं मांग रहा हूँ रेवेन्यू नंबर्स के, कि भैया रेवेन्यू में आपका क्या नंबर था, आपने लास्ट ईयर क्या अचीव किया, उसके लास्ट ईयर क्या अचीव किया. They will say there is a year on your growth of 15%. Fair enough, but what is the number? Trust me, when you give the measurables, you are enabling yourself to get that award. हमको भी कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ से यहाँ ग्रोथ है, 10% की ग्रोथ है, 15% हमें नहीं मालूम, लेकिन आपने नंबर दिया है. ऑथेंटिसिटी कैसे चेक कर रहे हो, ऑडिटिंग कर रहे हो, मतलब ये नंबर्स लेते हैं और ये हमको कॉन्फिडेंस देता है. अब ये विवेक आके बोलेंगे मैंने 10 मिलियन से 15 मिलियन रेवेन्यू कर लिया अपनी सैलरी के. थोड़ी क्वेश्चन करोगे. Behind the scenes fact check होगा. बाद में टीम आपको रीच आउट करेगी और पता करेगी ये सही है कि नहीं है. मतलब ऐसा नहीं कि दुबई कोर्ट में अटेस्ट करके लाना पड़ेगा ये रिपोर्ट. नहीं, इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठे हैं कि हम खुद देख के अटेस्ट वेरीफाई कर लेंगे कि नंबर्स कितने सही हैं. नहीं, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट.
And Reema, your thoughts on this? जहाँ पे Yeah, I think my advice to everybody thinking of applying is fill in the details. Details में फरिए, tell your story to the world. We can't. There are very good 4 or 5 questions in the form. They are very straightforward. हर question को ना answer करने से पहले put some thought behind it. You're not filling a nominal form. Every question is read by every jury member. 5, very senior people in the industry are spending so much time reviewing each and every application. And I think about people, purpose and profit, right? You need each of those. One is founder, क्या brand है उनका. Purpose is what is your organization doing, what impact you are trying to create. And then profit, obviously, जैसे जय जी ने बोला, numbers are important and they are important in telling the story. Right, we'll continue the conversation. अगर आपके पास कोई भी सवाल, you can always send us a WhatsApp 0586861003. August 24th, reveal करने वाले हैं 25 winners, 5 champions in each of the 5 categories. This is MSME Honors. सुनते रहिए टॉक 100.3. 9:35 on the clock. विवेक और निकिता आपके साथ है. MSME Honors in conversation with the jury. We've got Reema Mahajan, we've got CA Jaiprakash Agarwal. Now the thing is, जब हम बोलते हैं founder of Indian Women in Dubai, and when we say that, CA Jaiprakash, this doesn't do justice to your profile because you all are much more than that. Reema, इतने सारे competition awards में आपको invitation मिलता है. Being a jury member या फिर, being a judge, what is that motivation that you have that you do give your services या फिर your presence over there? I think I decide my time कहाँ spend करना है based on the genuineness and the impact that we are trying to do. Right. So अभी तो बहुत events के invites आते हैं, right? If you look at our weekends, we can literally pack और it. हर जगह जज बन के जाते हो? Judge, guest, जो भी है यार, you're part of the event. But I am trying to be more selective now of where I am, so that they are the right places to be. So वो कोशिश जारी है. Right. But then, also being a judge comes with a lot of responsibilities as well. Yes. And doing justice on that, वो आप कैसे manage करते हैं? अपने दिल पर हाथ रखकर. Because you have a business angle also associated, right? तो वो भी manage करना. I think it comes with a lot of responsibility, like I said in the beginning, right? कि we have to be fair. We are trying to really award the real people of Dubai, as I say, right? These are the homepreneurs, solopreneurs, small businesses that are trying to build their confidence. तो यहाँ पे दिल और दिमाग दोनों के साथ we have to work. And also CA Jaiprakash Agarwal, I mean, he's also the chairman of the Dubai chapter of ICAI, Institute of Chartered Accountants of India. ये तो बहुत ही prestigious position है. इसके अलावा भी you have your own, venture running. Plus, बहुत सारी जगहों पे you do presentations. So how do you manage all of this? And of course, being the jury member here. सबसे बड़ा सपोर्ट इसमें मेरी फैमिली का रहता है. ओके, एज रीमा राइटली सेड, वीकेंड्स हमारा बहुत बिजी जाता है. ओके, वीकडेज हमारे काम में जाता है, वीकेंड्स ऑल दीज अवार्ड्स, जजेस, फंक्शंस. सो सपोर्ट ऑफ फैमिली इज ह्यूज. ये जो बड़े बड़े लिंक्डइन पोस्ट जो आते हैं उसमें कितना टाइम लगता है? कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हैं आप? इतना वैल्यूएबल भी होता है? ये सब मन से आता है? नहीं, सब लिखा जाता है और मन से लिखा जाता है. एवरीथिंग आई राइट. मेरी आदत है लिखने की, तो मैं लिखता हूँ. ओके. एंड टीम रहती है, उसको मॉडिफाई जरूर करती है, बट यस, थॉट प्रोसेस चलता रहता है और उसी हिसाब से लिखा जाता है. बट सही में समय बहुत जाता है. और ये तो दिल पे हाथ रखती है, मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ. बट ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस भी आते हैं फेस्टिवल्स के दौरान, यू क्यूरेटेड देम योरसेल्फ? यस. I mean, all this takes time, I think. Yes, it takes time. And you also manage everything else and do this also. Yes. और इसका इम्पैक्ट है कुछ? इम्पैक्ट ये है कि आई कनेक्ट विद पीपल. जैसे आज अगर हम आज बैठे हैं, आई थिंक लास्ट मैसेज मैंने आपको भेजा होगा 15 दिन पहले या 20 दिन पहले, ऑन फ्रेंडशिप. करेक्ट. उसके बाद आज मिल रहे हैं और आज भी अगर आपने मेरे को उसके लिए पूछा है, इसका मतलब उस फ्रेंडशिप मैसेज ने कहीं ना कहीं आपको इम्पैक्ट किया है. करेक्ट. राइट. तो मेरा वो इम्पैक्ट जरूरी होता है कि हाँ, यू आर कनेक्टेड विद इट. आपको कहीं ना कहीं आपके दिल के तार को छेड़ा गया है. और वही मेरा इंश्योर रहता है कि काम अपनी जगह है, रिलेशनशिप भी मेंटेन करिए. एट द एंड आज आप ह्यूमन है, मैं ह्यूमन हूँ, दिल से दिल तक जुड़ना जरूरी है. काम तो होता रहेगा. एंड चाहे आप उसके लिए व्हाट्सएप भी यूज करना पड़े या लिंक्डइन यूज करना पड़े, विच एनीथिंग और एनी प्रेफरेंस? नहीं, प्रोफेशनल के लिए लिंक्डइन, दोस्तों के लिए व्हाट्सएप? नहीं, मैं दोनों में व्हाट्सएप और लिंक्डइन. व्हाट्सएप इज 1-to-1 कनेक्ट, लिंक्डइन इज मास मैसेजिंग, मास रीचिंग आउट. कोई भी पढ़ सकता है. व्हाट्सएप में जब कर रहा हूँ मैं आपको डेडिकेट करके कर रहा हूँ. लिंक्डइन में डाल दे रहा हूँ. आपकी इच्छा लगी कि यार जय का पोस्ट आया, देखना है तो देखिए, नहीं देखना है तो बंद कर दीजिए. Reema also using the right platform to promote your brand, yourself is very important, you think, Reema? Visibility is very important, right? Out of sight is out of mind. I run a women network, right? Indian Women Network, where we teach entrepreneurs how to build businesses. And I always tell them that you are your best person
पर्सनल ब्रांड. आपका जो भी बिजनेस है, और आजकल द पर्सनल ब्रांडिंग इज सो मच इम्पोर्टेंट बिकॉज लोग ट्रस्ट के बेसिस पे खरीदते हैं. So it doesn't matter any platform, you're saying? Any platform. If you are a small business and you're trying to market products to an audience, you need to be on Instagram. If you are more of a B2B business, you need to market to businesses, you need to be on LinkedIn. Right. Facebook is, coming along. If you're targeting 40 plus, you still need to be on Facebook. It's not dead. नहीं, मैं नहीं हूँ Facebook. Just kidding. Yeah, right. And अभी तो if you're targeting the youngsters, go on Snapchat and TikTok. आपका जो brand है, आपको वो platform choose करना पड़ेगा कि आप किस पर हैं. So you need to tailor the content. Instagram content doesn't go on LinkedIn. Because X पे तो खाली restricted है, Exactly. Instagram पे is more X photos, is video, LinkedIn is more of different. writing. Yeah, so every platform is different and the audience is different. And if you don't differentiate between your strategies on the two platforms, Jay ji ka WhatsApp message is very different from what you see on LinkedIn, right? That is an example of how you tailor your strategy कि आपका audience कौन है और कहाँ है. Beautiful. Anyway, Jai ji, I want to ask you this. Yes, What's the one common mistake that you've seen among nominees for the MSME Honours? And, when you've seen that, in the previous years also, what are some of the common mistakes that the nominees do? चलिए एक मिस्टेक बताता हूँ. कितनी बार क्या होता है, विवेक जी को आपको नॉमिनेट करना है, बोल रहे हैं बहुत बढ़िया काम कर रही है, मेरे को नॉमिनेट करना है. तो टैली गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन नॉमिनेट. नाउ अब नॉमिनेट करना है तो अगर विवेक जी की आइडिया अच्छा है, स्वेच्छा बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है उसके लिए रिसर्च करना जरूरी है. ही शुड नो एवरीथिंग अबाउट यू एंड देन ही शुड पुट इट इन द फॉर्म, क्योंकि हमने बोला फैक्ट्स, राइट. अब क्या होता है, ये चीज बहुत कॉमन मिस्टेक होती है और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने सोचा लेकिन आपने एग्जीक्यूट प्रॉपर्ली नहीं किया. बहुत सारे एप्लीकेशन आते हैं, विवेक जी ने नॉमिनेट कर दिया, आपके बारे में जो थोड़ा बहुत जानते थे डाल के फॉर्म में जो 4 लाइन डालनी थी बंद करके सबमिट कर दिया. प्लीज अंडरस्टैंड, फर्स्ट राउंड ऑफ जब हम चेकिंग कर रहे होंगे उसी में वो फिल्टर आउट हो जाता है, जबकि वो अवार्ड्स के लिए अचीव कर सकती थी अगर आपने वो पूरा फैक्ट्स रिसर्च करके डाल दिया होता, उनसे 2 बातें की होती, एक चाय पी होता, एक कॉफी पी होती, समझा होता और फॉर्म को पर्टिकुलर सही से भरा होता, तो एटलीस्ट शी वुड हैव क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट स्टेज. ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज कीवर्ड्स आप नहीं ढूंढ रहे हैं उसमें. मैं ऐसा कीवर्ड्स नहीं ढूंढ रहा हूं, आप खुद पढ़ रहे हैं, सब कुछ पूरा पढ़ा जा रहा है. प्लीज अंडरस्टैंड, ये 5 जूरीज पूरा पढ़ रहे हैं. अगर उनको जेनरिक लगेगा, कहीं इम्पैक्ट नहीं, नो स्टोरी, नो नंबर्स, नो फैक्ट्स, वो फिल्टर आउट हो जाएगा. तो अगर आप किसी और को नॉमिनेट करते हैं, प्लीज इंश्योर आप उस पर रिसर्च करें और उसको पूरा भरें. So in detail, you'll have to make all those, whatever you think to what is financials, everything in one go, पूरा ही लिख के भेज पूरा भेज दीजिए. Okay. Anything else, Reema, that you'd like to add as a common mistake? My thing is make the effort when you're doing the application, right? Just like he said कि अगर आपने टाइम नहीं लगाया ना वो पूरा डिटेल डेटा डालने में, तो आप फर्स्ट राउंड में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. And maybe doesn't matter how talented you are and how deserving you are, you don't go to the next round for us to screen it in detail. So please, when you fill the form the first time, 5 मिनट 10 मिनट लगाइए, sit back, take a cup of coffee and just fill it with everything that you have. मतलब this is all free of cost, right? Exactly. The other thing is, तो लग ही नहीं रहा. the thing is कि काफी लोगों को ना हिम्मत नहीं होती कि यार जब वो बोलते भी है कि यार तेरे बिजनेस को मैं नॉमिनेट करता हूँ, तो वो ना अरे छोड़ना यार, मुझे ये सब नहीं, मैं नहीं पढ़ना है. तो ये हिम्मत कैसे जुटाए? 2 चीज़ें होती है. एक तो हिम्मत, आपने सही बोला, हिम्मत जुटाने के कुछ नहीं है, एक बार करेज लेना पड़ता है, एक बार आपको सोचना पड़ेगा. और जब आप बैठ के लिखेंगे तो 2 चीज़ें और होती हैं. एक, आपको क्लैरिटी आती है कि मेरे नंबर्स कहाँ गए और मैं कहाँ जा सकता हूँ. सो दैट इज़ वेरी नेसेसरी टू लुक बैक एंड राइट इट. अगर आप नहीं भी करना चाहते, बैठिए, मैं बोलता हूँ आप बैठ के एक बार आप खुद को एनालाइज करिए, आपका साल कैसा गया, आप उस नंबर्स को खुद लिखिए, चाहे मत सबमिट करिएगा, आपको कुछ ना कुछ नया चीज़ देखने को मिलेगा जो आपको इंप्रूव करेगा एज ए MSME इन द नेक्स्ट ईयर. सेकेंड, एक मिथ है, बहुत बड़ा मिथ है जो MSME में, और इसमें लास्ट 4 साल से ये देख रहा हूँ, इज़ कि भाई मेरे नंबर्स मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, ये मैंने को डिस्क्लोज नहीं करने हैं. प्लीज़ अंडरस्टैंड, आपके नंबर्स कॉन्फिडेंशियल है, आपके नंबर्स कहीं डिस्क्लोज नहीं होंगे, सिर्फ आपके इवैल्यूएशन में यूज़ होंगे. फ्रीली लिखिए, ये कहीं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे नहीं जाने वाले हैं, ताकि हम एक्सेस कर सकें, हम जब आपसे बात करें हम उस नंबर्स को वैलिडेट कर सकें, समझ सकें. तो ये दोनों चीज़ लाइए. एक, प्लीज हैविंग दैट करेज, एंड यू डोंट डू इट. आप खुद ही करिए, आपको एक समझ में आएगा कि आप एक नई चीज़ सीख के जाएंगे. वो करेज लेके आना पड़ेगा. स्टेज पे चढ़ने पे बोलने का इच्छा सब रखते हैं, जाते हैं तो कलेजा फड़फड़ाता है. It's not that easy. Yeah, Reema, your thoughts on this? Yeah, and I think sometimes SMEs are not very comfortable communicating, right? आपको लगता है कि मुझे स्टोरी बतानी नहीं आती है. कोई बात नहीं, स्टोरी बतानी नहीं आती, एटलीस्ट फैक्ट्स तो स्टेट कीजिए. अरे ब्यूटीफुल, राइट, ब्यूटीफुल. बिकॉज स्टोरी बनाने में, उसकी इसको इवॉल्व होने में, पॉलिश करने में बहुत टाइम लग जाता है. करेक्ट. बट अगर आप फर्स्ट टाइम कुछ लिखेंगे ना, तो आपका वो नंबर्स एंड स्टोरी अपने आप रिफाइन होता चला जाएगा. बट टेक दैट फर्स्ट स्टेप.
Correct. And this is what is important as well, you know, कि चलो आप अपने, you know, circle में रहे, which is great, and then you're expecting that, you know, it will spread the word. Spreading the word on a platform like MSME Honors, this is superb for any business, for MSMEs, yeah. And Tally calls every entry to help them articulate their story better. Okay. तो आपने फर्स्ट टाइम जब फॉर्म भर दिया है, एटलीस्ट नंबर्स फैक्ट सही लिखे हैं, अगर आपकी स्टोरी में दम है तो Tally will help you refine it better. Right. अभी बिग रिवील अगस्त 24 को होने वाला है. आपके कपड़े बड़े सब तैयार हो गए? Are you excited? मैं पूछना चाहती हूँ आपके कपड़े तैयार हैं? आपके तो हैं? यार इस बार भी करें. आप भी तो मिलते हो हमको वहाँ. To both of you, what's the most exciting aspect, and what are you looking forward to from the winners and their reactions, the stories, and something else that you'd like to share, something as a big reveal? बिग रिवील में मैं यही शेयर करूँगा कि इस बार भी जो विनर्स हैं वो इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं. Right. और अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं. मजे की चीज़ है, अब जैसे हमने बोला हमें भी नहीं मालूम है, विनर्स को भी नहीं मालूम है किसने जीता है. तो यू विल कैप्चर द नेचुरल रिएक्शंस ऑफ दीज विनर्स लाइव देयर. विवेक भाई ने तो बहुत एक्सपीरियंस किया. विवेक भाई, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा जब आपने किया है? व्हाट वाज द रिएक्शन? मैं एक्सप्रेशन के साथ बताऊंगा. मतलब उन्हें यकीन नहीं आ रहा था कि वो जीतने वाले हैं. दैट इज द थिंग. एंड वंस दे वन दे वांट टू विन अगेन, बट ये नहीं होता. नहीं, वो जीत गए तो जीत गए, राइट? नहीं, मतलब नेक्स्ट ईयर भी अगर No, I think we give a chance to more new people. The winners are always winners. Okay. And the good part is Tally stays in touch with all the winners in the previous year. They all get invited back to the MSME event every year. And this year तो थोड़ा surprise भी है विवेक जी. अच्छा. They are doing नोरा फतेही आ रही है. उससे भी better. हमारे सारे winners stage पे आ रहे हैं. And they're all doing a fashion walk and talking about the business. Priyesh has just told me this out of this thing. Oh wow! The previous year's winners are going to do a Yes. fashion walk. Oh, that's very nice, very Yes. interesting. And they will come on the stage to summarize, tell about the business in 1 minute and all of that. So they get an opportunity back on stage, which is very beautiful. ऐसा नहीं है कि 5 साल पहले जीता था तो भूल गए. You are still remembered and you are still in touch with Tally. And this is an invite event only, right? Yes. Yeah. Yes. तो इसके लिए कुछ है फॉर्म वॉर्म भरना, लकी ड्रॉ, या फिर you have to be a business person to You have to be in the top 10 अच्छा, entries not in all the nominees are nominated. Oh, Okay. all right. तब तो हॉल, कोई हॉल नहीं है, 2 ही मिल सकता है. Expo City. एक्सपो सिटी में ना, वो भी अंडर रेनोवेशन है. 10,000 लोग. So yeah, हाँ. एक्सपो सिटी में कितने लोग आते हैं? 10,000. नहीं, मिलियन, वो जो फेस्टिवल होता है. हाँ. मिलियन. लेकिन अभी अंडर रेनोवेशन एक्सपो सिटी. हाँ, मतलब इंडोर का तो 10,000. 10,000 है. यहाँ एप्लीकेशंस या नॉमिनेशंस 11,000 आए हुए हैं. कहाँ बैठाएंगे अगर मैं सबको बुलाऊंगा? बट सब लोग थोड़ी आएंगे. But yeah, it is always a fantastic event हर साल जब होता है, and it is a grand event and it's a great platform. More than anything else, that the fun which is associated with it. More than that, it is the platform which MSMEs get. We'll move forward with a rapid fire with Rima and CAJ. Yes, it's now time for moving on to our confession session with the jury members. So, बहुत fun होगा ये. We'll ask you these rapid fire questions. सही जवाब within seconds आपको देना पड़ेगा, ठीक है? During the jury discussions, what is more, common? Is it the coffee breaks or the debates? Debates over coffee. Okay. हम दोनों करते हैं. झटपट जवाब आ गया. मतलब वो मग नहीं उड़ता है. So what's that one entry that made you go wow in the 30 seconds of nomination? कुनाफा coming in. Oh, nice. What about you, Rima? चॉकलेट के साथ कॉफी, राइट? फिर तो कॉफी फीकी लगेगी मीठा खाने के बाद. हम चला लेते हैं काम. इतना डिटेल में जा रहा. So have you ever felt sleepy during nomination deliberations? A yes or a no? No, I don't. I Really? look at each entry, yes. Okay. I कभी love भी it. आपको boredom नहीं हुआ? नहीं, बोर्डम नहीं हुआ. 11,000 जय. नहीं, 11,000 नॉमिनेशंस नहीं. आप यह समझिए, 11,000 में तो बहुत ज्यादा फिल्ट्रेशन टीम ने भी कर दिया जहाँ पे डेटा नहीं हाँ. आया. हमारे पास तो रिफाइंड वर्जन्स ही आएंगे जहाँ पे स्टोरी में इम्पैक्ट है, नंबर्स है, कुछ. 11,000 हम. So you get to see the creme de la creme. Yes. What about you, Rima? No, I mean the session is so intense. इतनी डिबेट चल रही होती है आप सो ही नहीं सकते हो. There is no chance at all. कभी भी boredom नहीं आती है नहीं, कभी भी बोर्डम नहीं आती है. And I think the whole jury takes it as a responsibility कि हमारे पास ऊपर इतना भार है हमारे कंधे पे उस टाइम. कोई तो कैटेगरी होगा. सकता है. टेक एंटरप्रेन्योर, उसमें तो Every category कुछ is तो more होगा. challenging than the rest. And to be honest, वो एंट्री ना नेक्स्ट एंट्री ये लगता है ये एंट्री अच्छी है, नेक्स्ट तक जाते हैं तो हमें लगता है ओ ये तो और भी अच्छी है. So we end up actually reviewing from 1 to 10 and then we go back to 1 to 10 just to benchmark them together. So it's that thorough process. Right. Okay. So moving on, if jury discussions were a movie, would it be a comedy, drama, or a thriller?
कॉमेडी रहेगी, 100% रहेगी, बिकॉज हम हंसते हैं। मुझे लगा फ्यूजन होगा। बहुत फ्यूजन, 100% फ्यूजन होगा। आपको हर एलिमेंट मिलेगा उसमें। राइट। हम रोते नहीं है, बस बाकी बसता नहीं है। नहीं मतलब एक्शन नहीं होता है, आपने बोला एक्शन तो करते नहीं आप लोग एक दूसरे को मार वर्ड्स का एक्शन होता है, वर्ड्स के बहुत एक्सचेंज होते हैं, एक्शन लिटरली नहीं होता। अच्छा। बिकॉज जब भी मैं रीमा जी के मसल्स देखता हूँ मैं खुद ही चुप हो जाता हूँ। आई डोंट गो बैक। Women power. Yeah, women power, exactly. So Reema, what is your choice of movie? Is it going to be a thriller? Is it going to be a comedy or a drama when you're deliberating the discussions? It's a comedy. It's a serious comedy, right? We are debating serious things, but we make it fun and we make it lively and interactive कि कोई सो नहीं सकता. Okay. So what's that one secret thing that you'd like to talk about every nominee that had included in their submission? What is that secret ingredient? What's that secret? Every nominee had included in their submission. अपने submission में उन्होंने include किया होता. Secretly आपने अगर चाहा कि है ना ये अगर include कर लेता numbers, right? We've talked about it. Number नहीं डालोगे तो proof नहीं आएगा ना. That is. मुझे लगा it was more of detail. डिटेल्स ठीक है। सीक्रेट रेसिपी मैं सोच रहा हूँ कि क्या सीक्रेट रेसिपी मैं देख रहा हूँ। अगर फूड की बात करूँ तो मैं तो फूड की प्लेट मंगाने के तैयार हूँ कि भैया आप ले आओ। चॉकलेट जैसे कुनाफा था, आई वाज मोर इंटरेस्टेड कि भाई टेस्ट भी कराइए, क्या आप बनाया, आपने कैसे बनाया, क्या नहीं बनाया। बट रेसिपी अगेन, अगर सीक्रेट रेसिपी की बात करूंगा तो मैं ये हमेशा बोलता हूँ कि नंबर्स हम देखते हैं, नो डाउट स्टोरी भी इम्पैक्ट करती है, लेकिन एक चीज़ जो हम हमेशा देखते हैं कि क्या वो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। क्योंकि एट द एंड आज के में दुनिया वापस वहाँ जा रही है जहाँ कैश बर्निंग इज़ वेरी नॉर्मल, वेरी थिंग। लेकिन एमएसएमई के लिए कैश बर्निंग कैन नॉट बी एन ईजी थिंग, कैश लिमिटेड होता है। तो इसीलिए वी ऑल्सो फोकस ऑन कि क्या इसने अपने आइडिया पे पैसे भी बनाए, छोटा ही बनाया लेकिन बनाया, तो इसका मतलब है इट्स अ गुड। तो हम वो नंबर पे थोड़ा ध्यान रखते हैं कि प्रॉफिट होना चाहिए, कैश बर्न नहीं होना। चलो लास्ट rapid fire question. That's the first word you'll say when the winners are revealed on the 24th of August. Wow. Congratulations. Absolutely. You know, a quick tip CAJ for everybody, for all the MSMEs या फिर anyone running a business right now listening to us, a quick tip उनके लिए। टिप ये रहेगा, अवार्ड्स के हिसाब से बोल रहा हूँ और टोटल बोल रहा हूँ, प्लीज रीविजिट एंड री लुक एट योर ईयर। जब आपने साल कंप्लीट किया, आप एक बार उस पेन और पेपर को लेके बैठिए। इसलिए नहीं कि दुनिया को बताना है, इसलिए कि आप अपने आप को बता रहे हैं कि आपने क्या किया है। उसके हिसाब से आपकी नेक्स्ट ईयर की स्ट्रैटेजी में 100% डिफरेंट चेंज आएगा, आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ मूव कर रहे हैं। तो प्लीज री लुक and then decide what you want to do. And Reema, what about you? Some advice? My advice is please tell your story to the world. It's okay. जितना भी बोलना आता है, जैसे भी बोलना आता है, जैसे भी लिखना आता है, I think you need to make it vocal because if you don't tell your story to the world, then nobody else can tell it better than you. And any advice for the women entrepreneurs out there, womenpreneurs that you would like to share as an advice? Just show up. Just show up. It's the most difficult task, right? It is. हमेशा बहुत hesitation होता है घर से निकलने में, especially women को और hesitation होता है. There are n number of bahanas we can make before we get out of the house. But if you just show up to one networking event, if you just show up to one next event, just one at a time, take one at a time. But show up and you will see the impact over a couple of months. Did you get to see the trophy? Did you get to see anything else, the prizes and? हमें कुछ नहीं बताया, हमें सिर्फ यूज किया गया जजिंग के लिए। मतलब प्रॉपर वो जो इंडियन कोर्ट में जज होता है ना, आंखों में पट्टी। कोई बोलो, हमको नहीं बताया गया है। आप अभी दर्द की बात करो, हमारा दर्द खुलने लगेगा, जाने दीजिए। तो ऐसा सुनने में आया कि अगले घंटे भी हमारे गेस्ट बैठने वाले हैं। Any special invitees for the event that you'd like to shed light on? Maybe a little bit of a teaser. कुछ पता नहीं है। सरप्राइज एलिमेंट जरूर है, नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे लेकिन सरप्राइज है और विनर्स विल बी सरप्राइज सीइंग हिम देयर। क्योंकि मेरी उनसे कल ही बात हो रही थी, परसों मैं उनसे बात कर रहा था, एंड मोस्ट लाइकली ही विल बी फ्लाइंग इन फॉर दिस इवेंट। नाम अंदर रखते हैं लेकिन है, जरूर है, सेलिब्रिटी है। Right, superb. You know, it is fantastic having you all both in the studio. Special episode था ये MSME Honors का in conversation with the jury. Huge thank you to Reema Mahajan and CH Jayaprakash Agarwal for taking us inside the jury room, showing us how much thought and care goes into picking the winners. Big reveal August 24 को होगा, 25 winners, 5 categories, countless inspiring stories, और हम आपको मिलेंगे अगले 7 मिनट में। We'll check in another 7 minutes, I believe, right? Yeah. Thank you, Jay. Thank you Reema. so much to both of you for enlightening us. Have a good day. And anything for Tally MSME? कुछ कहना चाहोगे? मैं यही बोलना चाहूँगा, एक अवार्ड है जिससे मैं एक्चुअली एसोसिएट होकर बहुत हैप्पी हूँ। रीजन बीइंग, एज आई सेड, इट्स अनबायस्ड, इट्स एक्चुअली वर्किंग फॉर MSME विदाउट एनी मोटिव कि वो मेरा क्लाइंट है कि नहीं है।
that is really something which is beautiful and I love that. और ये इस तरह से मैं इनको एक वो भी दे रहा हूँ कि मेरे को बनाए रखिए और मैं जज करता रहूँगा. And Reema, any final words for Tally I think MSME? keep empowering as you are doing. I talk about women empowerment a lot. I think Tally does it in the real sense. So please continue the good mission and all the very best. All the very best to both of you as well. Thank you. Thank you.